ہندوستان ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا، بہت سے راجا رجواڑے اور نواب حکومت کرنے لگے، انگریزوں کو دین میں تارے نظر آنے لگے، انہیں بھی لگا کہ ہم بھی اس ملک میں حکومت کر سکتے ہیں۔ اب وہ تجارت کے نام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو ترقی دی اور بہت سے ہندوستانیوں کو فوجیوں کی شکل میں اس میں انہوں نے ان کا تعاون لیا، بھرتی کی، انہیں تربیت دی اور انہیں ایک منظم فوج بنا دیا۔ اور سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کا چراغ جلا ہے وہ بنگال کی سرزمین پر پلاسی کی میدان میں بہادر سراج الدولہ کے سرپرستی۔ ایک طرف سراج الدولہ تھے، یہ 1757 کی بات ہے، اور دوسری طرف انگریز حکومت تھی، انگریزوں کا ٹولہ تھا، مگر جو سراج الدولہ صاحب تھے ان کے فوج میں بہت سے غدار موجود تھے جس کی سربراہی میر جعفر کر رہا تھا، اور عین لڑائی کے وقت میں میر جعفر اپنے جرنلوں کو لے کر انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور سراج الدولہ کو شکست ہو گئی۔ سراج الدولہ کو میدان چھوڑ کے جانا پڑا اور بکسر میں کسی خانقاہ میں پناہ لینا پڑی، پھر ان کو درویشی کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی۔ یہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کی پہلی جنگ تھی جس کی قیادت مسلمان کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ لڑائی آگے بڑھی اور میسور کی سرزمین پہ کرناٹک کی اسٹیٹ میں وہ لڑائی لڑی گئی 1799 میں بہادر ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ انہوں نے 1757 سے لے کر 1799 تک بھرپور ماضرائی کی اور انگریزوں کو شکست پر شکست دی، مگر اس ملک کی بدقسمتی بہت سے ہندوستانیوں نے اور بہت سی حکمراں جماعتوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ ٹیپو سلطان کو 1999 میں شکست ہو گئی۔ جب ٹیپو سلطان کی شکست ہوئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت انگریز جنرل ٹیپو سلطان کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا تھا کہ اب یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی ٹیپو سلطان ایک شیر تھے، شیر کے سامنے لومڑیوں کی بس نہیں چلتی تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ ہم نے ایک شیر کو مار ڈالا ہے تب انہیں حوصلہ ملا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1799۔ مگر 1799 سے لے کر 1857 تک، یعنی 1799 سے کلکتہ اور میسور سے انہیں دلی پہنچنے میں لگ بھگ 60 سال یا 65 سال لگا، اور اس دوران میں بہت سے ہندوستانیوں جس میں ہندو بھی تھے اور مسلم بھی تھے، بھرپور امداد میں مارکا رائی کی۔ اس میں ہندوستان کی ایک خاتون ہیں لکھنؤ کی جن کو ہم حضرت محل کے نام سے جانتے ہیں، یہ نواب خاندان کی تھی، اودھ کے نواب خاندان کی تھیں، اور انہوں نے بھرپور مہاجرائی کی، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ لیکن بہرحال اسی زمانے میں میرٹھ میں فوجیوں میں بغاوت ہوئی انگریزوں کی حرکتوں کی وجہ سے، اور یہ فوجی ان میں زیادہ تر ہندو تھے، اور سب کے سب دوڑے دلی کی طرف، اور ہندو ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا لیڈر چنا مسلمان کو، جن کو دنیا بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے آخری تاجدار کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 1857 کا واقعہ ہے، مئی کا مہینہ تھا، رمضان شریف کی 16 تاریخ تھی۔ بہادر شاہ ظفر بزرگ آدمی تھے، عمر بہت ہو گئی تھی، اور ان سے ہندوستانی فوجیوں نے اور باوقار لوگوں نے سرپرستی کرنے اور قیادت کرنے کی گزارش کی۔ بہادر شاہ ظفر نہیں کر سکے، انہوں نے قیادت کی اور دلی میں ہندوستانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر دوبارہ بادشاہ بن گئے،
मगर अभी चंद महीना नहीं हुआ था कि अंग्रेजों ने दोबारा एल्गार किया और खुद हिंदुस्तानियों ने गद्दारी की। बिलाखिर जितने आज़ादी के मतवाले और जयाले थे, जवामर्द और मुजाहिद थे, सब के सब या तो गिरफ्तार किए गए या तो उन्होंने रुकुशी किया। उनमें कई हजरात हैं जिन्हें तारीख में बुला दिया, उनके नाम आप याद रख सकते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुल्ला, अहमदुल्लाह मदरासी, डॉक्टर वजीरुद्दीन अहमद अकबराबादी, डॉक्टर फैज़ अहमद फैज़ बदायूनी, मौलाना किफ़ायत अली काकोरी। इसके अलावा बहुत सारे उलमा हैं। ये 1857 को गदर के नाम से जानते हैं और यहाँ कई हजार उलमा को लाल किला से लेकर जामा मस्जिद तक फांसी में लटका दिया गया था, सूली चढ़ा दी गई थी, कई हजार उलमा। और बहुत सारे जनरल, बहादुर, फौजी को सजा दी गई और दिल्ली शहर को मुर्दाखाना बना दिया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में 6 महीने तक घोड़े बांधे गए, ना अज़ान होती थी न नमाज होती थी। इस तरीके से 1857 में सबसे ज्यादा जो अजियत के शिकार बनाए गए वो मुसलमान थे। फिर ये सिलसिला, लेकिन सिलसिले की शुरुआत, आज़ादी की जो शुरुआत हुई थी वो 1757 से कलकत्ता में। 1858 में मुसलमानों ने शिकस्त, हिंदुस्तानियों की शिकस्त जरूर हुई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, गाहे बगाहे सिलसिला चलता रहा। यहाँ तक कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली गई, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत से लोग मौजूद थे, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। फिर कांग्रेस की क़यादत में हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग चलती रही, जिसमें बिलखुसूस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जनाब गांधी जी और नेहरू जी, इनकी खास तौर से क़यादत रही। मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि वो पाकिस्तान उस वक्त बना नहीं था, डॉक्टर लियाकत अली और बहुत सारे लोग थे। ये क़यादत में यानी 1885 से लेकर 1947 तक की जो लड़ाइयाँ हैं, जद्दोजहद है, कोशिश है, जेल भरो आंदोलन है और हिंदुस्तानियों को जेल से भरा जाना, तकलीफें देना, फांसी देना, एक बहुत लंबी तारीख है। चंद जियाले हैं, चंद बड़े नाम हैं, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है भगत सिंह साहब। भगत सिंह की उम्र क्या थी? भगत सिंह साहब की उम्र सिर्फ 23 साल। 23 साल का एक नौजवान, वो अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में आता है, आज़ादी की बात करता है और अंग्रेज उसे बागी करार देते हैं, आतंकवाद करार देते हैं, जेल में डाल देते हैं, मुकदमा चलता है और फांसी की सजा दे दी जाती है। भगत सिंह को जब फांसी दी गई है, उसकी तारीख थी 1931, 47 में आज़ादी मिली, 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। और आपको ये मालूम होना चाहिए वो पैदा पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में हुए और उनके आज भी जो यादगार बनाए गए हैं वो पाकिस्तान में, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान नहीं इंडिया था। दूसरा एक बड़ा नाम है अशफाकुल्ला खान साहब, ये फैजाबाद के थे, उम्र सिर्फ 27 साल थी। ये बिस्मिल प्रताप एक आज़ादी के हीरो थे, इनके साथ दोस्ती की और इन्होंने एक संगठन बनाई और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। इन्हें गिरफ्तार किया गया, बागी करार दिया गया, आतंकवाद करार दिया गया और इनके खिलाफ मुकदमा चला और इनको फांसी की सजा दी गई। उनकी फांसी की तारीख थी 1927। उनका जब वो फांसी के लिए ले जाए जा रहे थे, उन्होंने एक शेर कहा था, उनको शायर और अच्छे शायर थे। उनका ये शेर बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा था, कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू है तो ये है, कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू है तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन। कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू है तो ये है,
रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन। फिर एक नाम है सुभाष चंद्र बोस का, ये उड़ीसा कटक के थे और इन्होंने भी बड़ी जद्दोजहद की। आज़ाद हिंद के नाम से एक तहरीक चलाई। उन्होंने कहा था आप खून दो हम आपको आज़ादी देंगे। इनके जनरल और इनके फौजियों का पहला दस्ता मुसलमानों की एक बड़ी जमात थी और ये इंग्लैंड के अलावा अंग्रेजों के अलावा दूसरे जापानी वगैरह से समझौता करना चाहते थे और एक बेहतर फौज बनाना चाहते थे। इन्होंने कई सफर किया, अपना देश बदला और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जितनी मेहनत और कोशिश कर सकते थे इन्होंने किया। लेकिन बंदे की मौत 1945 में एक हादसा हो गया। किस तरह हुआ इसकी कोई ज़्यादा मालूमात किसी को नहीं है। आखिर में हिंदुस्तान की आज़ादी की बात आती है 1947 की। हालांकि ये जो तारीख है मैंने कहा कि 1757 से लेकर 1857 तक, फिर 1857 से लेकर 1947 तक, इसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और एक से एक कुर्बानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के बाशिंदों ने कंधे से कंधे मिला, क्या वो मुस्लिम हो खा वो हिंदू हो। उस वक्त ना कोई हिंदू था ना कोई मुस्लिम था, इस माना में कि हमें हिंदुस्तान की आज़ादी चाहिए। आखिर में जब आज़ादी का वक्त करीब आया, ये 1930 से लेकर 1945 का जो दौर है, अगर आप तारीख और इतिहास को खंगालें तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड लेवल पर इतने हालात बुरे थे। इसी दौर में 2 जंग हुए जिसको वर्ल्ड वार कहते हैं और इसमें कई लाख लोग मरे हैं, कई लाख लोग, और दुनिया की इकोनॉमी और मईशत बिल्कुल तबाह हो गई थी। और ये अंग्रेज हुकूमत जो दावा करती थी कि हमारे लिए सूरज गुरूब नहीं होता, उनको भी दिन में तारे नजर आने लगे थे। उनकी जो मईशत डगमगा रही थी तब उन्हें सोचना पड़ा कि हमें हिंदुस्तान को आज़ाद कर देना चाहिए। उस वक्त गांधी जी की क़यादत में, कांग्रेस की क़यादत में जो दिल्ली न पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चल रही थी कि हुकूमत के साथ ताउन ना किया जाए, हुकूमत की मदद ना की जाए। और उस वक्त उनको फौजियों की ज़रूरत थी क्योंकि वर्ल्ड वार ये गोरे साहब लड़ रहे थे, इसलिए इन्हें हिंदुस्तानियों की मदद की ज़रूरत थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब के सब अहमदनगर जेल में मौजूद थे। गांधी जी इन सब से जाके अंग्रेज हुकूमत ने मुलाकात की, इनसे डील किया ताकि साहब ऐसा है आप हमारे साथ ताउन करो, हमारी मदद करो, हम अगर वर्ल्ड वार जीत जाते हैं तो फिर हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। मौलाना आज़ाद, गांधी जी वगैरह ने कहा कि ठीक है। इन्होंने फिर बाकायदा वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया। इसलिए अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आज भी यूरोप में बहुत से हिंदुस्तानियों के यादगार बने हैं जो कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जर्मन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। और ये जो इंडिया गेट है जिसमें कई हज़ार शहीदों के नाम लिखे हैं, ये वही शहीद हैं जो हिंदुस्तानी हुकूमत की बका के लिए ये जर्मन से जंग लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने तो बनाया ये कह के कि हिंदुस्तानियों की जो लोगों ने शहादत दी है उनकी इज्जत अफजाई हो। ये लोग वो लोग नहीं हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जान दिया, ये अंग्रेज हुकूमत के साथ ताउन किए। फिर आखिर में अंग्रेजों की हालत इसलिए खराब हो गई कि इनकी मईशत और इकोनॉमी बिल्कुल डगमगा गई। उन्होंने अब फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे और आज़ादी की उन्होंने तारीख कर दी 1948। मगर हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे थे और फिर हिंदुस्तानियों में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसादात शुरू हो गए। बहुत से लोग थे जो अपने मफादात और अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। बिलाखिर बात फिर यहाँ आ गई कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाए, एक हिस्से का नाम पाकिस्तान हो, दूसरे हिस्से का नाम हिंदुस्तान। लेकिन इसके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने जो आखिरी गवर्नर भेजा, जो हिंदुस्तान ना अंग्रेजों का भी आखिरी गवर्नर है और हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रपति। अगर आपसे कोई पूछे
आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले सदर जमहूरिया कौन हैं, राष्ट्रपति कौन हैं, तो आप कह सकते हैं वो अंग्रेज हैं और उनका नाम माउंटबेटन है। इस साहब को अंग्रेजों ने इस मुल्क का गवर्नर बनाकर भेजा और ये साहब चाहते थे कि कितना जल्द हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाए। और इधर हिंदुस्तान के कायदीन में और नेताओं में जंग चल रही थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। माउंटबेटन ने मुस्लिम लीग से भी मुलाकात की और कांग्रेस से भी मुलाकात की। कुछ बातें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब आज़ादी हिंद में बहुत सी बातें लिखी हैं। ये वो किताब है, उसमें वो किताब का नाम है हमारी आज़ादी, जो उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है और दुनिया की बहुत सी ज़ुबानों में। इस किताब को जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा तो उन्होंने कहा कि इस किताब में सील लगाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रख दी और कहा मेरे मरने के 30 साल बाद इस किताब को छापा जाए, क्योंकि इसमें जो हुआ है वो हमने लिखा है, लेकिन ये किताब जब छप जाएगी तो बहुत से लोगों के मुखालिफ हो जाएंगे और खून खराबा होगा। इसलिए सारे के सारे लोग जब मर जाएं तब ये किताब छापी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में किताब लिखी थी और वो किताब आज मार्केट में मिलती है, उस किताब को पढ़ना चाहिए। उस किताब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको मालूम नहीं है, और जब वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान की तकसीम में सही मानों में शुरुआत कौन है। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी किसी सूरत नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान की तकसीम हो। माउंटबेटन ने जब खुफिया मीटिंग की तो उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस के कायदीन में सबसे कमजोर कड़ी कौन है। उन्होंने उस आदमी को चुन लिया, मैं नाम देना पसंद नहीं करूँगा। फिर उनको बुलाया, कहा कि यार वो एक टुकड़ा चाहते हैं, तुम पूरा मुल्क चाहते हो, आज़ादी के साथ हुकूमत करो, छोड़ो उस टुकड़े को। फिर गांधी जी भी राजी हो गए और नेहरू जी भी राजी हो गए। और आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, कांग्रेस की जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें वेटिंग में पाकिस्तान के हक में जिन लोगों ने वोट डाला उसमें गांधी जी भी थे, नेहरू जी भी थे, पटेल जी भी थे, और जिन लोगों ने मुखालिफत में वोट डाला है उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं और सावरकर जी भी हैं। ये तारीख का अजब इत्तेफाक है। इस तरीके से ये मुल्क आज़ाद हो गया। ये जो माउंटबेटन साहब थे, जिनको 15 अगस्त से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए नहीं कि आपकी आज़ादी की तारीख है, इस तारीख में उसका अपना फायदा था। ये बंदा जब जापान में था और अमेरिका ने बमबारी की और हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया और जापानियों ने हथियार डाल दिए, तो वो था तारीख थी 15 अगस्त की। तो 15 अगस्त में ये बात मशहूर हो गई कि माउंटबेटन ने जापानियों को शिकस्त दी। तो ये 15 तारीख जो है, 15 अगस्त, ये माउंटबेटन के लिए बहुत अच्छी तारीख थी। जब उसने ऐलान किया, अभी हमने बताया कि 1948 का ऐलान हुआ था कि हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाएगी, लेकिन माउंटबेटन ने जल्दीबाजी करते हुए उसने तारीख मुकर्रर कर दी 15 अगस्त 1947। बहुत से हिंदुस्तान के दानिश्वरों ने कहा कि ये 15 अगस्त की तारीख शुभ नहीं है, लिहाजा 15 तारीख बदल कर कोई और तारीख की जाए। लेकिन उमूमन कायदीन ने इसकी मुखालिफत नहीं की। उन्होंने चाहा यार आज़ादी मिल जितना जल्द मिल जाए हम इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई दूसरा फितना खड़ा हो जाए। लिहाजा यही वजह है कि रात के 12 बजे के बाद ऐलान हुआ था कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाती है। इस तरीके से 1757 से लेकर 1858 और फिर 1947 तक इस मुल्क की आज़ादी में हमारे बड़ों की, हमारे पुरखों की, बहुत से मुसलमानों की, बहुत से हिंदुओं की कुर्बानी है, और वही इसी वजह से आज हम आज़ादी के दिन मना रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमको तारीख़ पर नज़र रखने, इतिहास को समझने और अपने बड़ों की कुर्बानी को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।